Hi students, how are you? I'm hoping that you guys are doing very well. So today in this lecture we are going to learn about reactions of alkyl halide with metals. So it is an important concept. So let us start with this lecture. When you have an alkyl halide, you have alkyl halide. That alkyl halide reacts with metal. This is metal M, and then it forms RMX. So when alkyl halide, that may be chloride, bromide or iodide, reacts with a metal, then it forms a compound in which there is a carbon metal bond. Carbon, C for carbon and M for metal. Then there is a carbon metal bond. So these type of compounds are known as organometallic compounds. Organometallic compounds. Just keep in mind what I said to you. Just look here. When you have an alkyl halide that reacts with a metal, then we get a compound like RMX. In this RMX or in this compound, there is a carbon metal bond, carbon C and M, that is carbon metal bond. So these type of compounds are known as organometallic compounds. एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में ऐसा, organometallic compounds, which one is not an organometallic compound, ये क्वेश्चन था उनका. So आपको ध्यान देना, R का मतलब है कार्बन, M फॉर मेटल, X फॉर हैलोजन. सो अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलने वाला है जनरल फार्मूले के साथ RMX. और दूसरा भी ऐसे टाइप का दूसरा भी मिल सकता है, बट जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड होगा. कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन मेटल बॉन्ड. कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो. ऑर्गेनो इज रिलेटेड टू कार्बन. metal, that metallic means metal. So we have organometallic compound. Okay, when there is a compound and that compound is containing carbon metal bond, then the whole compound is known as organometallic compound. Understood, right? Okay, so next, so in this organometallic compound, our first compound is what? Grignard reagent, one of the most important compound. ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा इसके बाद जिसमें आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ नहीं होने वाला या आप इसको पढ़ने वाले नहीं हो. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, you can use Grignard reagent for the preparation of alkenes, for the preparation of alcohol and many more. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट Grignard reagent. So what is Grignard reagent? Grignard reagent is an organometallic compound. पहले तो ये आपको याद होना चाहिए, organometallic compound. So if I am saying that Grignard reagent is an organometallic compound, it means there is a carbon metal bond in this Grignard reagent. Understood? So when I am saying ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब कि उस कंपाउंड में एक कार्बन और मेटल का बॉन्ड है. एग्जाम्पल बोलो आप, कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. या मैंने पूछ दिया व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो आप क्या बोलोगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बिकॉज उसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, सो नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज डिनोटेड बाय, शॉर्टकट में मैं GR लिख देता हूँ उसको. Grignard reagent, this GR represented by RMGX. मतलब आप Grignard reagent में कौन सा मेटल यूज करने वाले हो? मैग्नीशियम. So when alkyl halide reacts with magnesium in presence of dry ether, then we get what? RMGX. जो आपका ये मेटल है, Mg मैग्नीशियम, वो R एंड X दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये X और R के बीच में क्या आ जाएगा? मेटल. तो यहाँ पे आपका कार्बन और मैग्नीशियम का मतलब मेटल,
कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय RMgX. RMgX इट इज प्रिपेयर्ड लाइक दिस. कैसे प्रिपेयर करोगे आप इसको? व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with magnesium in presence of dry ether, then it forms RMgX. Next, in RMgX, so बेटा RMgX में जो R और M G के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड कैसा है बेटा? वो कोवैलेंट बॉन्ड है. ये R और इंपॉर्टेंट बात. सो ये कोवैलेंट बॉन्ड है. आर और मतलब कार्बन एंड मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा? ये कोवैलेंट बॉन्ड है. ये आपको याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा उन्होंने. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? दिस आर इज कंटेनिंग या कार्बन इज कंटेनिंग व्हाट? partial negative charge, and this magnesium is containing partial positive charge. Magnesium is highly electropositive. Second, that is S block, second group element magnesium. ब्लॉक इसका एस ब्लॉक से बिलोंग करता है मैग्नीशियम और ग्रुप 2 से है. ठीक है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बन पे या आर पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. तो ये कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट है बट आयोनिक इन नेचर. कोवैलेंट है एंड आयोनिक इन नेचर. सो वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है RMgX. RMgX इज अ कोवैलेंट कंटेनिंग कंपाउंड. मीन्स इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड, किसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा? किसके बीच में? कार्बन एंड मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है. ठीक है, बट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ड्यू टू दैट इज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो आपका ये मैग्नीशियम है वो हाईली इलेक्ट्रो क्या है? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस. तो आपको इसको, और x पे तो माइनस होता ही है. तो यहाँ पे 2 प्लस होते हैं क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना होती है उसकी वैलेंसी? 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो एक R के साथ अटैच और एक X के साथ. बट आपको ऐसे नहीं भी, आप सिंपल सा ऐसे शो करोगे RMgX यहाँ पे डैश, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसी दोनों का इंपॉर्टेंस है. ओके, गॉट इट. ग्रिग्नार्ड रीजन क्लियर हो गया. कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी क्लियर हो गया. कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें, यस, बट पोलर आयोनिक इन नेचर. Ionic in nature because magnesium क्या है? Highly electropositive. Next, when this Grignard reagent reacts with water, then it forms alkanes. कैसे बेटा? देखो जरा आप. So as we know that R having partial negative charge, magnesium having partial positive charge, और यहाँ पे हाइड्रोजन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो सिंपल सा है कि देखो ये R है. अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजन में वाटर ऐड कर दिया या ऐसा कोई भी कंपाउंड ऐड कर दिया जिसमें कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन. व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन? हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन. तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. सो ये इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन. व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, देन इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट बिहेव्स लाइक व्हाट? अ प्रोटोन एंड नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन. एक आपको क्लियर कट होना चाहिए. ठीक है. सो जो आपका वाटर है बेटा, इसको रब करता हूँ मैं, आप ध्यान देना. सो जो आपका वाटर है उसमें H प्लस है. सो दिस R माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस H प्लस, और फिर MgX के पास कौन चला जाएगा? OH. सो यू गेट दिस RH एंड प्लस MG के पास X पहले से था. नाउ वी आर एडिंग व्हाट? OH. MgXOH. दिस इज द बाय प्रोडक्ट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अल्केन, वी गेट अल्केन. सो व्हेन योर ग्रिग्नार्ड reagent, this RMgX Grignard reagent reacts with alcohol, water or amines, then it forms what? Alkane. Then it forms alkanes. तो और भी बहुत सारे यूजेस हम पढ़ेंगे बट मैं सब यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा. अभी हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल सब पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे. बट आपको बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिप्रेजेंटेशन याद रखना है. वो कौन से टाइप का कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है.
उसका उसमें बॉन्ड कार्बन मेटल बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट होता है बट आयोनिक इन नेचर। ओके ओके बेटा, सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिनोटेड बाय RMgX। सो नेक्स्ट अभी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यस बेटा, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। आपको याद होगा लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने वर्ड्स रिएक्शन के बारे में बातें की थी, वर्ड्स रिएक्शन। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग related to words reaction, that is we are going to learn some more reaction related to words reaction. First is words fatigue reaction, बहुत ही सिंपल है सब। words fatigue reaction, मुझे I am hoping that you guys are clear with your concept related to words reaction is clear. So ये भी बहुत ही सिंपल है। words fatigue reaction, fatigue and then fatigue reaction और एक और पढ़ेंगे थर्ड वन, दैट इज उलमैन रिएक्शन। ये थ्री रिएक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है। प्रॉब्लम हमें याद रखने का है और याद रखने के लिए मेरा एक ही मंत्र रहता है, एक ही आपको एडवाइस रहेगा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। बिकॉज आप केवल पढ़ के उसको याद नहीं रख सकते जब तक उसी बात को, चाहे वो कितना भी आपको लगता है थ्योरेटिकल, उसको आप उसके बारे में नहीं लिखोगे। आप जब तक लिखोगे नहीं तब, क्योंकि लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है, ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, और वो यूज़ करने का वो कभी समझ में आएगा कि क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। फॉर दैट you must have the information about that compound or that concept. Okay, so let us start with these compounds. So you are clear with this Grignard reaction. Now we are going to learn about words fatigue reaction. बहुत ही simple है। words fatigue reaction क्या है बेटा? words fatigue reaction का मतलब है words fatigue reaction वर्ड्स रिएक्शन में क्या किया था आपने, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। when alkyl halide reacts with sodium in presence of dry ether. I'm hoping that you guys are clear why we are using a dry ether. ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना। So आप देखो जरा, अब यहाँ से आपने इसको बाहर कर दिया था और आपको मिला था RR। ये R यहाँ से, ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ से ऐड हो जाएगा ना, RR। डबल क्यों हो गया? डबल कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आपने R लिया है और इधर से भी R हो जाएगा तो R डबल हो गया ना कार्बन। अगर यहाँ पे आपने एक कार्बन लिया और यहाँ पे भी एक कार्बन लिया तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन हो जाएंगे। वही बोलते हैं, अगर एक कार्बन से आपने स्टार्ट किया अल्काइल हैलाइड का तो 2 कार्बन आपको मिल जाते हैं। सो ये वर्ड्स रिएक्शन है। तो वर्ड्स फिटिंग में क्या डिफरेंस है सर? इन वर्ड्स फिटिंग व्हाट वी डू, वी टेक अल्काइल हैलाइड सोडियम विथ अराइल हैलाइड। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है बेटा, यहाँ पे आपने बेंजीन रिंग लेना है। ये देखो आप, सो हियर यू हैव, इन दिस केस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके पास क्या है? अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे आपके पास क्या है? अराइल हैलाइड। फिर क्या होगा बेटा? ये देखो आप, कितना सिंपल है, यू गेट R एंड देन दिस बेंजीन रिंग एंड प्लस 2NaX जो आपको मिलता है बार बार, 2NaX। क्लियर? सो यू आर गेटिंग व्हाट? अल्काइल बेंजीन। यू आर गेटिंग अल्काइल, अगर ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। अगर आपने R के प्लेस पे क्या ले लिया? अगर आपने R के प्लेस पे CH3 ले लिया, मान लो आपके R के प्लेस पे आपने क्या ले लिया है? CH3, तो आप क्या लिखोगे बेटा? बेंजीन रिंग बनाओगे, जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे? CH3। ऐसे में यहाँ पे R के प्लेस पे मैंने CH3 ले लिया बस, तो ये क्या बन गया? टोलुइन। कॉमन नेम याद है आपको? टोलुइन। अब ये सब बार बार आपको मिलने वाला है, टोलुइन। सो what we were learning we are learning this words fatigue reaction. So in words fatigue reaction, alkyl halide and alkyl halide reacts with aryl halide and sodium in presence of dry ether. ठीक है, तो आप अल्काइल हैलाइड भी लोगे, अराइल हैलाइड लोगे, दोनों लेने वाले हो आप, अल्काइल एंड अराइल। दैट इज अराइल मीन्स, don't get confused, aryl means what?
बेंजीन रिंग, अराइल का मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव, एक बेंजीन रिंग होगी या तो बेंजीन रिंग ही होगी और उसमें और भी कंपाउंड्स अटैच हो सकते हैं उस रिंग में, मतलब बेंजीन रिंग होना चाहिए. So when alkyl halide and aryl halide reacts with sodium in presence of dry ether, then they form what? Alkyl benzene, which is known as Wurtz-Fittig reaction. So what is the difference between Wurtz reaction and Wurtz-Fittig reaction? Wurtz reaction में दोनों alkyl halide होते हैं और Wurtz-Fittig में क्या होता है, एक alkyl halide होगा and second one will be what? Aryl halide. Clear to all of you? बहुत ही सिंपल है. Okay, next. Next, Fittig reaction. Second one is Fittig reaction. Fittig reaction. पहले था Wurtz reaction, then Wurtz-Fittig reaction and Fittig reaction. What is Fittig reaction? बहुत ही सिंपल. अभी क्या करोगे? When aryl halides, आप aryl halide को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर आपको नॉर्मल सा लिखना है, so you can write only ARX. When reacts with sodium in presence of dry ether, then we get what? AR dash AR plus what? 2NaX. So simple. देख लो कितना सिंपल है. When aryl halide, Fittig में आप only aryl halide यूज करने वाले हो बेटा. In Fittig reaction we use only aryl halide. अब आपको डिफरेंस याद है तो आप सारे रिएक्शन नहीं बता सकते हो. वर्ड्स क्या है, वर्ड्स फिटिक क्या है और फिटिक रिएक्शन क्या है. सो वर्ड्स में अल्काइल हैलाइड, वर्ड्स फिटिक में अराइल एज वेल एज अल्काइल एंड फिटिक में ओनली वॉट? अराइल हैलाइड्स. ओके, सो यहाँ पे देख लो आप AR ले लिया. आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल ले सकते हो AR के प्लेस पे. अगर आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लिया और फिर यहाँ पे X प्लस, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ आपको अंडरस्टूड हो जाएगा. फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? Na एंड वॉट? ड्राई ईथर. सो अभी क्या मुझे यहाँ पे लिखना है? 2. अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, ये भी सोडियम भी 2Na. तो वो आपको याद नहीं करना कि यहाँ पे 2 है, वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है. उसको मैं 10 बार बोल चुका कि रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता. जब आप 1 लिखते हो इसका मतलब यहाँ पे 1 का मतलब ये 1 नहीं है, दैट इज़ 1 मोल है इन केमिकल रिएक्शन, जो आपने 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो. सो आप उनको चीज़ों से कंफ्यूज मत हुआ करो. सो यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बेंजीन हैलाइड. सो ये क्या मिलेगा बेटा? अब दो बार आप इसको ऐड कर दो. एक बेंजीन रिंग हो गया, फिर डैश लगाया और इसी से दूसरा बेंजीन रिंग भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो दिस इज व्हाट. अब 2 बेंजीन रिंग अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइफिनाइल फॉर्म करता है. ओके, एंड प्लस 2NaX. आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2NaX. ओके, क्लियर हो गया? पक्का एकदम. ओके, सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप इन सब कॉन्सेप्ट को आराम से 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट दैट इज़ नोट में आप 2 पॉइंट लिख लो या समझ लेते हैं. फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज. अब इसका मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मतलब आपके पास अगर अल्काइल आयोडाइड है, आपके पास अराइल है, अराइल आयोडाइड है, अराइल ब्रोमाइड है एंड अराइल क्या है? क्लोराइड है. तो ये तीनों होने वाला. और आपको पूछा है कि इसमें से मैं इन तीनों को फिटिक रिएक्शन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट सबसे फास्ट किस में रिएक्टिविटी होगी? मतलब इन तीनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो. तो उन्होंने पूछा कि किस में रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा. तो किस में फास्ट होगा? आयोडाइड में. देन ब्रोमाइड में. सबसे कम किस में होगा? अराइल क्लोराइड में. ये देख लो आप. ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके लिए है? जब आप फिटिक रिएक्शन में या वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में कोई भी अराइल हैलाइड यूज़ करना चाहते हो, एक अराइल हैलाइड में आयोडीन प्रेजेंट है, दूसरे में ब्रोमीन प्रेजेंट है, तीसरे में क्लोरीन प्रेजेंट. तो किस में फास्ट रिएक्शन होगा? किस में किसकी रिएक्टिविटी जो है वो फास्ट होगी? किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी बेटा? दैट इज़ आयोडीन वाले की. ऐसे आप अल्काइल हैलाइड का यूज़ कर सकते हो. व्हेन यू हैव अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड. सो किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? अल्काइल आयोडाइड की, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड. अंडरस्टूड? यू गाइस आर getting the point? Clear to all of you? So Wurtz reaction, then Grignard reagent,
Words Fittig reaction, and then Fittig reaction, and then these reactivity order, two reactivity order when you are using alkyl iodide and alkyl bromide. Next, Ullmann reaction. Now we are going to learn next reaction, that is Ullmann reaction. Ullmann reaction, ये है बेटा थर्ड वन, उलमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी देखो आप, इसके पहले आपने क्या यूज़ किया था, सोडियम। गिटनाट रीजन में क्या यूज़ किया था, मैग्नीशियम। वर्ड्स रिएक्शन में क्या यूज़ किया था, सोडियम। तो वर्ड्स फिटिग या फिटिग, इन तीनों केसेस में वर्ड्स फिटिग एंड फिटिग, इन तीनों केसेस में आपने क्या यूज़ किया, सोडियम इन ड्राई ईथर। और आपने ग्रिग्नाट रीजन में क्या यूज़ किया, that is magnesium. In Ullmann reaction we are going to use what, copper. We are going to use copper. So you can write a reaction with copper also, a reaction with copper. So ये reaction को हम क्या बोलते हैं, this reaction is also known as Ullmann reaction. So what happened this Ullmann reaction? So when aryl halide, मान लेते हैं आपके पास आयोडाइड है, this reacts with copper, this reacts with what, copper, और आप हीटिंग करते हो, आप इसका हीटिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है ये डाइफिनाइल। आपको पता है आपने फिटिग में भी डाइफिनाइल बनाया था, तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप डाइफिनाइल बना सकते हो। प्लस 2CuI, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से कट गया ये बाहर हो गया। सो उलमैन रिएक्शन में फिर से हम अराइल हैलाइड यूज़ करने वाला है, जैसे फिटिग रिएक्शन में यूज़ किया था, बट फिटिग में क्या यूज़ किया था, सोडियम। इन दिस उलमैन रिएक्शन वी आर यूजिंग व्हाट, कॉपर। सो इट इज़ एन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर HDA। उलमैन रिएक्शन भी आपको आना चाहिए, और आपको ये वर्ड्स फिटिग भी आना चाहिए, फिटिग भी आना चाहिए। ग्रिग्नाट रीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, कहाँ पे पोलैरिटी है, वो सब भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो एक बार आप इसको देख लो, फिर से आप इसको रिवाइज कर लो, आप अपनी बुक में इसको लिखना है तो आप लिख लो। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इस बेटा अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम, कौन सा है, दैट इज़ related to one more concept, that is formation of, that is alkyl lithium, formation that is similar to magnesium, जैसे आपने ग्रिग्नाट रीजन पढ़ा था ना, formation of alkyl lithium, RLI, lithium पता ही आप, formation of alkyl lithium. So when alkyl halides reacts with lithium metal इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हम ड्राई ईथर बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप कौन कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हो, आप सोडियम यूज़ कर रहे हो, आप लिथियम यूज़ कर रहे हो, आप मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हो। सो जो लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। आपको ऑलरेडी पता, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने का मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव, और अगर हाईली रिएक्टिव है बेटा तो फिर हमें वाटर यूज़ करेंगे, तो ये जो लिथियम है, ये सोडियम है या मैग्नीशियम है, वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने से पहले किससे रिएक्शन कर देंगे, वाटर से, और आपको हाइड्रोजन बाहर करके दे देंगे। तो हमें तो वो रिएक्शन तो करना नहीं है, या हमें वो बनाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। मॉइस्चर का, इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर वी कैन नॉट यूज़। जो आपका रिएक्शन या जो आपका कंटेनर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर का मतलब आप समझो कि मॉइस्चर के ट्रेसेस भी नहीं होने चाहिए, मतलब एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रिएक्शन कर लेगा कौन, ये मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम। तो इसलिए हम ड्राई ईथर यूज़ करते हैं बार बार, ठीक है। सो अल्काइल, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल लिथियम में क्या है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी गेट अल्काइल लिथियम, RLI। और क्या मिलेगा बेटा आपको, RLI के साथ आपको और क्या मिलेगा, LiX। तो कितने लिथियम चाहिए आपको, 2 लिथियम। यहाँ पे एक लिथियम यूज कर लिया कि यहाँ पे, दिस इज नोन एज व्हाट, अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। दिस इज सिमिलर टू ग्रिग्नाट रिएजेंट। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ऑर्गेनो, और दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अल्काइल लिथियम इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड है? कार्बन। यहाँ पे देखो आर का मतलब क्या? कार्बन। लिथियम का मतलब मेटल। सो दिस इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, सो दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखेगा उस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक और है बेटा, एक और कंपाउंड है, दैट इज एक और रिएक्शन है, उसको हम बोल सकते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, ये कोरे हाउस सिंथेसिस जो है, दिस इज यूज टू फॉर्म unsymmetrical alkanes. This is used to form unsymmetrical alkanes. Unsymmetrical alkane का मतलब क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म करने का मतलब एक साइड में R है, दूसरे साइड में R डैश है। अब इसका मतलब क्या हुआ? R एंड R डैश का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे R का मतलब आपने CH3 ले लिया है और R डैश का मतलब आपने CH2CH3 ले लिया। तो ये देखो अलग हो गया, C2H5 और ये CH3। तो दिस इज नोन एज R एंड R डैश, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप ही हैं बट दोनों सेम नहीं है। तो इस मेथड से, मतलब कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड से आप क्या प्रिपेयर करोगे? अल्केन। बट वो अल्केन कैसा होगा? 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, मतलब अनसिमेट्रिकल बना सकते हो। याद है आपको सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब R एंड R, मतलब यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, या यहाँ पे C2H5 है तो यहाँ पे भी C2H5 है, ऐसा बना सकते। बट यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि एक R अलग होगा और दूसरा R अलग होगा, मतलब एक जो अल्काइल ग्रुप होगा वो डिफरेंट दूसरे से, इसलिए उसको एक को R से डिनोट करते, दूसरे को R डैश। क्लियर हो गया? अब जरा देखो, आप जरा यहाँ पे देखो, आप फिर से इन कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग? अनसिमेट्रिकल अल्केन, अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करते हैं। और हाँ, कैसे? तो कोरे हाउस एक रिएजेंट होता है जो जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। 1 मिनट। ओके, कोरे हाउस सिंथेसिस तो रिएजेंट होता है, कोरे हाउस रिएजेंट, दैट इज R2CuLi। ये मुझे डायरेक्ट याद ही रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको प्रिपेयर कैसा हुआ क्या हुआ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसका। अगर मुझे ये याद है या मैं पहचान पाता हूँ कहीं पे दिया हुआ है ऐसे, ये यूज़ हो रहा है कहीं पे, तो आप आराम से, आपको क्या याद करना है कि कोरे, जहाँ पे भी कॉपर लिथियम दिखेगा वो क्या है? कोरे हाउस सिंथेसिस। कॉपर कोरे हाउस को रिलेट कर लेना इसको। Cu लिथियम दोनों, कॉपर लिथियम दोनों चाहिए। ओनली कॉपर रहता है तो हम क्या बोलते हैं? उलमैन रिएक्शन। ओनली कॉपर रहता है तो हम क्या बोलते हैं? उलमैन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या, कॉपर, जब हम अराइल ब्रोमाइड में, अराइल हैलाइड में क्या यूज़ करते हैं? कॉपर मेटल, देन दैट इज नोन एज उलमैन रिएक्शन। कोरे हाउस में क्या होगा? व्हेन वी हैव, दिस इज नोन एज डाई अल्काइल, R2 है ना, तो डाई अल्काइल, दिस इज नोन एज डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, या क्यूप्रेट लिथियम भी बोल सकते हैं। 1 मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। डाई अल्काइल क्यूप्रेट, डाई अल्काइल क्यूप्रेट, क्यूप्रेट लिथियम, सो R2 का मतलब डाई अल्काइल, कॉपर से क्यूप्रेट आ गया और Li से लिथियम। तो फिर से एक बार, कोरे हाउस सिंथेसिस, अगेन वंस अगेन, कोरे हाउस सिंथेसिस। हाउस भी पढ़ते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोरे हाउस सिंथेसिस, सो यहाँ पे इन कोरे हाउस सिंथेसिस वी हैव रिएजेंट R2CuLi। ये मुझे कैसे भी याद होना चाहिए। डाई अल्काइल सोडियम, डाई अल्काइल क्यूप्रेट लिथियम। सो व्हेन दिस डाई अल्काइल क्यूप्रेट लिथियम reacts with alkyl halide, then we get unsymmetrical RCu and plus LiX,
ध्यान देना बेटा, एक साथ देख लो आप इसको, देखो। आई एम होपिंग दैट इज गाइस आर क्लियर विद दिस। दिस इज व्हाट, दिस इज कोरेहाउस रिएजेंट R2CuLi, दिस इज अल्काइल हैलाइड। R डैश का मतलब ये अलग है, तो आप RR वाला भी बना सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि हम वर्ड्स रिएक्शंस के थ्रू अनसिमेट्रिकल वाला बना नहीं सकते, वो बेस्ट मेथड नहीं है बनाने के लिए वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू। कौन सा? अनसिमेट्रिकल अल्केन। उसमें कौन सा बनाते हैं? सबसे अच्छा क्या बनता है? ईथेन बनता है। फिर क्या बनता है? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल उसमें ना के बराबर बनता है, या बहुत ही डिफिकल्ट है फिर उसको सेपरेट करना। तो अनसिमेट्रिकल अगर मुझे अल्किन बनाना है 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, ऐसे, तो मुझे ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। कौन सा? कोरेहाउस सिंथेसिस, जिससे मैं अनसिमेट्रिकल अल्केन को ईजिली क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा? RCuLix, इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। बट वर्ड्स अब जाके आप क्या करना, वर्ड्स रिएक्शन का जो अनसिमेट्रिकल, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें हम वर्ड्स रिएक्शन को क्यों यूज़ नहीं कर सकते अनसिमेट्रिकल अल्किन बनाने में। अब आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो जब आप वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू अनसिमेट्रिकल अल्किन बनाते हो तो आपको बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो आपको बनाना है वो बहुत ही कम मिलता है, बाकी ज़्यादा मिलते हैं। बट इस वाले मेथड से, ये कोरेस वाले मेथड से क्या होता है, हमें अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो हमें ईजी है, हम सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं इससे, बट अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। तो सिमेट्रिकल तो हम वर्ड से बना ही रहे थे, तो ये इससे अनसिमेट्रिकल वाला भी ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो अल्किन्स नहीं है, तो हम इनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं, कम कॉस्ट पे। ओके, सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस कोरेहाउस सिंथेसिस, वी हैव टू रिमेंबर दिस वन: when dialkyl cuprate lithium reacts with alkyl halide, then we get alkanes. This is the best method for the preparation of unsymmetrical alkanes. Clear to all of you बेटा? ये आपको क्लियर हो गया एकदम? ओके, सो और भी देख लेता हूँ, एक रिएक्शन और अगर ऐसे है तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और फिर आपको शो कर देता हूँ। देखो आप जरा, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखो आप, अगर आपने R2 के प्लेस पे क्या ले लिया बेटा? CH3, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, और फिर CuLi, एंड हियर यू आर टेकिंग C2H5X या Cl ले लिया आपने, तो क्या होगा बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? C2H5, तो सीधे क्या लिख दो आप? CH3 और C2H5 मतलब CH2CH3। ये C2H5 तो CH2CH3 होता है, तो ये बन गया आपको प्रोपेन बन गया, और एक्स्ट्रा एक मिथाइल बचा हुआ है, तो दैट इज CH3 और क्या? Cu, और जो आपका लिथियम है वो LiCl बना देगा। तो ये भी सॉल्ट है, इसको आप इजिली बाहर कर सकते हो, इसको भी इजिली बाहर कर सकते हो। आपके पास क्या होगा? प्रोपेन। दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्केन। और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब भी दोनों साइड में, जहाँ से भी आप ब्रेक करो उसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है, सो दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल अल्केन। तो वो भी देख लेना आप, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है बेटा? so for today, this is, I think this is for this lecture this is more than sufficient. और हाँ, अभी आप कोरिलेट करो वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, और भी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं। तो ये बहुत ही सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, बट आपको थोड़ा सा उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये सब